students, pay attention that it is also given in your textbook page number 110. Now see, जब ice cube होते हैं, suppose these are the ice cubes, okay? These are the ice cubes. They are in the solid state. कौन से state में होते हैं वो? Solid state में. It is given here in your textbook, and this is a glass of water. Water is there inside it. Okay, this is water, and this is the liquid state of water. इसको हम क्या बोलेंगे? Liquid state बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Liquid state of water. And when we heat this water, okay, here this water we cool down. This water we cool down in a refrigerator, and then it turns into the ice cubes. And this water, this is the water, when we heat it, what we do? We heat it, then it turns into the steam. Okay? It turns into the steam. As I told you, you put some water in a bowl and you heat it or you keep it in the sun, the quantity of the water reduces. That water turns into the steam, turns into the water vapor, that is the gas state of water. So, students, as you know that these are the three states of water: solid as ice, water as a liquid, and steam as a gas. Okay? Now, once again I just want to explain you that one state of matter change into another. मतलब पानी की जो एक कंडीशन है वो दूसरे कंडीशन में चेंज होती है. कैसे? जब हम पानी को कूल करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो उसकी आइस क्यूब बन जाता है, उसका आइस बन जाता है. और यही पानी जब हम उसको हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसकी स्टीम तैयार हो जाती है और वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है. दैट इज द गैस स्टेट ऑफ वाटर. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now see, one by one we are going to study the different process and process of water. Okay? Now first process is evaporation. The first process of water that we can find, that is evaporation. Now students, many a time you have heard this word, evaporation. But what is the meaning of evaporation? ये evaporation क्या है? बहुत बार हमने ये word सुना है, लेकिन इसका मतलब तो हमें पता होना चाहिए. The process in which a liquid changes into its gaseous state. ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस, मतलब पानी जो है वो वाटर का क्या है? लिक्विड स्टेट है. अभी हमने देखा. तो ये जो पानी है, लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट, तो ये पानी जो है वो गैस में ट्रांसफॉर्म होता है. किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है? तब जब हम उसको हीट करते हैं, जब हम उसको बॉईल करते हैं, तो वो जो है इट टर्न्स इनटू द गैस, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. So, what is the definition of evaporation? The process in which a liquid changes into its gaseous state is known as evaporation. Now students, see, evaporation is faster when we heat water and it is slower when we cool it. Evaporation की जो process होती है, it is faster, तो वो fast होने लगती है when we heat the water, when we boil the water. Okay? तो evaporation की process उस वक्त फास्टर होती है, जल्दी होने लगती है. एंड when it is slower when we cool down the water. और ये इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो स्लोली होने लगती है. कब? when we cool down the water, जब हम पानी को ठंडा करते हैं तब. Now students, see, one activity is given here. Take a beaker of water and heat it strongly. Sorry. You will find steam coming out.
जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो क्या होने लगता है, उसमें से स्टीम बाहर आने लगती है। दिस स्टीम इज फॉर्म ओनली ऑन हीटिंग। और ये स्टीम कैसे तैयार होती है, जब पानी को हम बॉईल करते हैं तब। Thus evaporation is faster when we heat the water at a high temperature। और ये एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है कि इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो फास्टर होने लगती है। कब? When we heat the water। Now see another example to show that evaporation is faster in high temperature। We can take the example when we dry the clothes in summer season। जब गर्मी के दिन होते हैं, समर सीजन होता है, बहुत कड़क तपती धूप होती है बाहर, और ऐसे वक्त में जब हम हमारे क्लोथ्स जो हैं वो क्लोथ्स लाइन पर ड्राई होने के लिए डाल देते हैं, सूखने के लिए डालते हैं, तब विद इन हाफ एन आवर आवर क्लोथ्स गेट ड्राई। हमारे जो क्लोथ्स है वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन there is a heat। ओके। और यही जो कपड़े हैं जब हम शेड में डाल देते हैं, छांव में डालते हैं, तब इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। बिकॉज देयर इज नो सनलाइट। वहाँ पर सनलाइट होती है क्या? नहीं, वहाँ पर क्या होती है? शेड होती है, और इसके वजह से इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है। इसीलिए अगर हम यही कपड़े जो है वो कड़ी धूप में डालते हैं सूखने के लिए तो वो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन यही कपड़े जब हम छांव में डालते हैं सूखने के लिए तो वो जल्दी सूखते नहीं हैं, उसको सूखने के लिए टाइम लगता है। इससे हमको ये पता चलता है कि द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर इन द सन एंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज स्लोअर व्हेन वी कीप द क्लोथ्स इन द शेड। जब हम छांव में कपड़े डालते हैं तो इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है। Now students see one skill fill is given here to compare evaporation of water under the sun and in the shade। Take two bowls of the same size and take some amount of water into it। Keep one bowl of water in direct sunlight and other bowl in the shade। Observe the amount of water in both bowls after 2 hours। मतलब 2 घंटे के बाद में दोनों बाउल में का पानी तुमको चेक करना है, कौन से बाउल में का पानी जो है वो कम हुआ है। in which bowl the quantity of water is reduced। You have to check it after 2 hours। You will see that bowl kept under the direct sunlight has less water। जो बाउल तुमने डायरेक्टली सनलाइट में रखी हुई थी उसका पानी जो है वो तुमको कम दिखाई देगा। दिस इज बिकॉज वाटर इवेपोरेट फास्टर अंडर द सन than in the shade। इससे हमको ये पता चलता है पानी का जो इवेपोरेशन होता है वो सन में ज्यादा फास्टर होता है than in the shade। Now students see, we have seen the process of evaporation। Once again I would like to repeat this definition। The process in which a liquid changes into a gaseous state। जिस प्रोसेस में लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। मतलब पानी बॉयल होके वो जो है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, गैसेस स्टेट में मिक्स हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। नाउ सी द सेकेंड वन that we are going to see is condensation। that is opposite of evaporation। evaporation मतलब पानी बॉयल होके उसका ट्रांसफॉर्मेशन गैस में होना। सेकेंड प्रोसेस इज दैट इज कंडेंसेशन। Second process that is condensation। The process through which a gas changes into its liquid state। ऐसी प्रोसेस की जिस प्रोसेस की वजह से गैस जो है वो पानी में चेंज हो जाता है, पानी में टर्न हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। नाउ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर condenses when it comes in contact with the cool surface। Now already I have explained it to you in the previous lesson। water vapor present in the air। हवा में जो वाटर वेपर होती है when it condenses
व्हेन इट कंडेंसेस इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कूल सरफेस, तो वो क्या हो जाती है, तो कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है। एंड फॉर एग्जांपल वाटर कंडेंसेस एज अ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ स्टील ग्लास containing ice. Now see this example. You boil water, and after boiling that water you have to cover it with a lid. और फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में वो जो कवर है वो निकाल के अगर तुम देखोगे तो फिर उसके पीछे तुमको छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दैट वाटर कंडेंसेस आफ्टर कूलिंग, मतलब ठंडा होने के बाद में, गर्म पानी ठंडा होने के बाद में उसका क्या हो जाता है, इट टर्न्स इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स. So is this clear to you students? Have you understood the process of condensation? The process through which a gas changes into its liquid state is known as condensation. जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया कि जिस प्रोसेस से गैस जो है वो लिक्विड स्टेट्स में चेंज हो जाता है आफ्टर कूलिंग डाउन. Now students, another skill field is there with the help of your parents or teachers. Means you have to do this activity with your parents or with the help of your teachers. Okay. Now see, observe the condensation of steam. Take a pan. एक कढ़ाई लेनी है तुमको, half fill it with water. उसको आधे तक पानी से भरना है. Now keep it on the flame and let it boil. उसको गैस पर रखकर थोड़ी देर उसको बॉईल होने देना है. नाउ केयरफुली होल्ड द स्टील प्लेट, और फिर थोड़ी देर के बाद में गैस बंद करके उसके ऊपर तुमको स्टील की प्लेट कवर करनी है. एंड ओवर द बॉइलिंग वाटर यू विल ऑब्जर्व ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट. और फिर थोड़ी देर के बाद में वो जो लीड है या तो वो जो कवर है वो निकाल के जब तुम देखोगे तो उसके पीछे तुमको ट्राइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखाई देंगे. Thus when water is boiled it changes into steam. तो इससे हमको ये पता चलता है कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं it changes into steam, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टीम में होता है. When this steam comes in contact with the steel plate, और ये जो स्टीम है ये स्टील प्लेट के कांटेक्ट में आती है, it condenses to form the droplets of water. और फिर वो ठंडी होने के बाद में वो स्टीम जो है वो ठंडी होने के बाद में उसके टाइनी ड्रॉपलेट्स तैयार हो जाते हैं. Now, next point that we are going to study, formation of clouds. Now students, these two processes we have learned today, that is evaporation, and second process is condensation. Both are opposite of each other. Evaporation means जब हम पानी को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद में जो वाटर वेपर तैयार होती है it mixes into the air, that is the gas state, that is the evaporation. And condensation, when we boil the water, water vapor forms, and that water vapor, that steam comes into contact with the atmosphere, and then it cools down. The process of condensation takes place, means that water vapor cools down and then it turns into the tiny water droplets. These are the two different processes. Now students, today we are going to learn फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. बहुत बार सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आता है मन में. मेनी ए टाइम स्टूडेंट्स आर हैविंग दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड, हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म. ये जो क्लाउड्स हैं आकाश में, बादल कैसे तैयार होते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ऑकर ड्यू टू कंडेंसेशन. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ऑकर ड्यू टू द कंडेंसेशन. तो उसका आंसर ये है कि कंडेंसेशन की प्रोसेस से ही क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन क्लाउड्स आर फॉर्म. नाउ स्टूडेंट्स यू विल से मैडम ये कैसे हो सकता है? सो पे अटेंशन केयरफुली फॉर दैट. द वाटर वेपर कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. वाटर वेपर कंडेंस ऑन द डस्ट पार्टिकल. जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होती है इट कंडेंस मतलब कूल डाउन ऑन द डस्ट पार्टिकल्स. जो डस्ट पार्टिकल होती है तो उसके ऊपर वो कूल डाउन होती है टू फॉर्म
टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और उससे क्या तैयार होते हैं, छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स तैयार होते हैं। Many such tiny droplets join together to form the clouds, और यही टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वो एक दूसरे को ज्वाइन होने के बाद में उससे क्लाउड तैयार होते हैं। इनसाइड द क्लाउड के अंदर क्या होता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स। क्लाउड के अंदर ये जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हुए बड़े बड़े बनते जाते हैं एंड बिकम टू हैवी, और फिर कुछ देर के बाद में वो कैसे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर हैवीनेस दे फॉल डाउन एज अ रेन, और हैवीनेस की वजह से, वो हैवी होने के वजह से वो जो है वो ज़मीन के ऊपर बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं, और हम बोलते हैं कि बारिश हो रही है। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स? क्लाउड्स किस तरह से तैयार होते हैं? जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होती है वो कंडेंस होती है। कंडेंस होना मतलब कूल डाउन होती है। बच्चों तुमको तो ये पता होगा कि एटमॉस्फेयर में टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ डस्ट आर देयर। एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो ये जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर तैयार होने के बाद में ये जो वाटर वेपर है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स के ऊपर जाकर कंडेंस होती है, कूल डाउन होती है, और ये ही टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। ओके, एक दूसरे को ज्वाइन करने के बाद में दे ग्रो इन देयर साइज, उनकी साइज जो है वो बड़ी बड़ी होने लगती है। दे बिकम टू हैवी, और वो हैवी हो जाते हैं। दे फॉर्म द क्लाउड्स एंड व्हेन दे बिकम टू हैवी दे फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। नाउ इज दिस क्लियर टू यू? नाउ स्टूडेंट्स, in this way the clouds are formed. I hope that you have understood it very well. Okay, now see next point that we are going to study, that is the water cycle. Okay, now in the previous lesson also we have studied water cycle. Now students, see, before that I just want to explain you this point, how the clouds are formed. Now students, see, formation of clouds. Formation of clouds. Okay, now students, see, formation of clouds occur due to the condensation. Now see, atmosphere is this is our atmosphere. Okay, and this atmosphere is having tiny droplets, means tiny dust particles. ये जो atmosphere है, ये atmosphere में tiny dust particles होते हैं। To prove this, I would just like to tell you that if sunlight is coming into your house in a straight line, it comes into a straight line, और जब वो straight line में हमारे घर में जब गिरते हुए दिखाई देती है तो वो जो लाइट होता है उसमें तुमको ये टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? टाइनी डस्ट पार्टिकल्स। वो जो सनलाइट होती है जो हमारे घर के अंदर आती है उसमें ये डस्ट पार्टिकल हमको एटमॉस्फेयर में दिखाई देते हैं। ओके, सो ये डस्ट पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर में क्या होती है? वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में क्या होती है? वाटर वेपर। और ये वाटर वेपर जो है वो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या हो जाती है? कंडेंस होती है। कंडेंस होना यानी कूल डाउन होना। ओके, और फिर वो एक को जोड़ते हुए, एक दूसरे को जोड़ते हुए वो क्या बन जाते हैं? बड़े बड़े बन जाते हैं। मतलब दिस डस्ट पार्टिकल ग्रो इन साइज, और ये जो वाटर वेपर है ये इसके ऊपर कंडेंस हो जाती है और इस तरह से क्लाउड्स तैयार होते हैं। ओके, इस तरह से क्या तैयार होते हैं? क्लाउड्स। क्लाउड्स के अंदर क्या होता है? डस्ट पार्टिकल होते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल जो है, वाटर वेपर जो है वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर कंडेंस हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है।
उसके वजह से क्लाउड फॉर्म तैयार होते हैं। और जब ये डस्ट पार्टिकल्स जो है दे बिकम हेवी, क्योंकि क्यों हेवी होते हैं वो, क्योंकि उनकी साइज बढ़ते जाती है, बिकॉज दे जॉइन ईच अदर, एक दूसरे को जोड़ते जोड़ते उनकी साइज बड़ी हो जाती है, और साइज बड़ी होने की वजह से वो हेवी हो जाते हैं, और हेवी बनने के बाद में दे फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ रेन। तो क्या तैयार होती है, रेन तैयार होती है। समझ में आया? तो हमारे अर्थ के ऊपर हमको बारिश का पानी मिलता है। ओके, so I hope this is clear to you. Now we are moving towards the water cycle. In the previous lesson also we have studied this water cycle, but just then also I would like to explain it to you. Now see this water cycle. Some more information you will collect in this water cycle. What is that new information? Now we are going to see. Now see, put your finger on page number 111, that is water cycle. Now see what is the definition is given here. Movement of water from the atmosphere to the earth. Movement of water मतलब पानी की जो movement है from the atmosphere, atmosphere से अर्थ के ऊपर and back to atmosphere, और फिर अर्थ के ऊपर से फिर एटमॉस्फेयर में मिक्स होने की जो प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं उसको? वाटर साइकिल। मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर रहती है वो फिर से रेन के फॉर्म में अर्थ के ऊपर आती है, और अर्थ से फिर इवापोरेट होके वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है, और ये जो साइकिल है ये साइकिल को बोला जाता है वाटर साइकिल। नाउ सी, विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियर। नाउ सी ऑन पेज नंबर 111, नाउ यू कैन सी हियर इज द सन। नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, दिस इज द सन, और सन की वजह से यहाँ पर जो नीचे जमीन के ऊपर जो पानी है वो क्या हो जाता है, इट कंडेंसेस वाटर, वो इवेपोरेट होने लगता है। जो अर्थ के ऊपर जो पानी है, ओके, वो पानी जो है वो इवेपोरेट होने लगता है, और इवेपोरेट होने के बाद में एटमॉस्फेयर में वो मिक्स हो जाता है, और एटमॉस्फेयर में मिक्स होने के बाद में इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन वाटर कलेक्ट्स एज अ क्लाउड। तो क्या तैयार हो जाते हैं, क्लाउड्स तैयार हो जाते हैं। व्हेन द वाटर ऑन द डस्ट पार्टिकल इट बिकम्स वेरी हैवी एंड इट कम्स डाउन एंड फॉल एज द इन द फॉर्म ऑफ अ रेन, दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन, water falls as the rain, and in this way this rain comes on the earth, and again we are having water. Now students, I would like to explain it you with the help of the picture. Now see, this is our sun, okay, this is our sun, okay, and we are having water on the land. This is our land. Here we are having water in the form of river, or in the form of ocean, or in the form of lake, pond, okay, or sea. So this is the water here. Suppose we will name it river. पानी जो है वो किसके फॉर्म में है, रिवर के फॉर्म में। So because of the heat of the sun, this sun rays fall, this sunlight falls on this water, and this water starts evaporating. ये जो पानी है ये इवेपोरेट होने लगता है, और फिर इसकी जो है वो वाटर वेपर तैयार होती है। व्हाट इज दिस? इसको हम बोल सकते हैं वाटर वेपर, या तो उसको बोल सकते हैं स्टीम। तो ये जो वाटर वेपर है ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, ओके। एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ओके। दिस इज द एटमॉस्फेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स।
एटमॉस्फेयर। जो एयर का जो लेयर है हमारे अर्थ के आजू बाजू में, तो वो एयर के लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर और उसमें होते हैं डस्ट पार्टिकल। और ये जब डस्ट पार्टिकल जो है, ये वाटर वेपर जो है वो उसके ऊपर जाके कंडेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? कंडेंस। कंडेंस मतलब कूल डाउन, वी कैन कॉल इट कंडेंस और वी कैन से इट कूल्स डाउन। ओके, तो वो कूल डाउन होती है और फिर ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हुए जाते हैं। दे आर ज्वाइनिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? वो ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद में वो क्या तैयार हो जाते हैं? क्लाउड। उसका फॉर्मेशन किसमें होता है? क्लाउड्स में होता है। एंड व्हेन दिस डस्ट पार्टिकल्स of water when they condense they become very heavy। जब वो कूल डाउन हो जाते हैं तब वो क्या हो जाते हैं? हेवी हो जाते हैं। और हेवी होने के बाद में फिर से जमीन के ऊपर बारिश के रूप में वो पानी जमीन के ऊपर आता है। बारिश होती है ना, तो बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है वो जमीन के ऊपर आता है। कहाँ पर आता है? जमीन के ऊपर। या नहीं तो फिर तुम बोलोगे कि मैडम नहीं, बारिश होती है तो वो सीधा जमीन पर आती है ना, या फिर स्काई में जाती है? नहीं, वो सीधा जमीन पर ही आती है। बारिश का पानी जो है वो जमीन के ऊपर ही आता है और फिर जमीन के ऊपर फिर से क्या तैयार हो जाता है? वी आर हैविंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर। रिवर के रूप में वो पानी स्टोर होता है, या तो फिर सी के रूप में वो पानी स्टोर होता है, या तो वी आर हैविंग पॉन्ड्स, वी आर हैविंग ओशन, वी आर हैविंग रिवर। So these are the different forms of water where the water is stored. So again this water comes from the earth and then this water again starts evaporating. क्या होने लगता है? Evaporation होने लगता है। Evaporation होने लगता है मतलब ये पानी धीरे धीरे बॉयल होने लगता है। फिर वो टर्न होता है वाटर वेपर में, उसकी वाटर वेपर तैयार होती है। फिर वो वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है। एटमॉस्फेयर में होते हैं डस्ट पार्टिकल्स और जब ये वाटर वेपर वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर जाकर थम जाती है, वहाँ पर वो कूल होती है। एक दूसरे को वो डस्ट पार्टिकल फिर से ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद में क्लाउड्स तैयार होते हैं। When these dust particles becomes very heavy, जब ये डस्ट पार्टिकल जो है वो हेवी हो जाते हैं, हेवी होने के बाद में दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन टू द अर्थ, तो फिर वो बारिश के रूप में फिर से अर्थ के ऊपर आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। और ये जो साइकिल है ये चल नहीं रहता है, मतलब इवेपोरेशन होता है।